Hello, I am Pramathesh and I am back with another episode of Bor-Kothoki. And as you know, Bor-Kothoki in Assamese means very talkative. And today I am going to be talkative again and talk with uh, a long time friend, Tikuli, with whom I have not spoken for a very long time. And I thank her to join me in this podcast. So, hello, It, Tikuli. How are you? I am good. Thank you so much. It's a pleasure to talk to you. Mm. So, Tikuli, what we are trying to do in this podcast is we will try to discuss poetry and make it sound very easy to other people who are not into poetry. And what we are trying to do is just express our stories yeah, through the medium of poetry. It's Okay. a humble attempt. I don't know I will be successful in that or not, but I am just trying to understand the nuances of poetry myself through this podcast. And in this process, those who are listening to this podcast will also try to understand poetry, and maybe it will inspire them to write poetry also. It can be in any language, whatever language they feel comfortable. And I do this podcast 2 days in a week, that is Saturday and Sunday. And in Sunday, I do it specifically with Hindi or other regional languages. Yeah, I think it's a very good idea because a lot of people struggle with the initial steps and, they think that it's a very difficult craft and you need to have a lot of, some kind of a training or so it's a better it's a good idea that you're trying to promote and encourage people to explore their creativity and not feel intimidated by writing anything, whether it's poetry or prose or just uh, their thoughts. So I think you're doing a good job. Thank you. So, uh, so what kind of poetry do you write mostly? Uh, Actually, I have evolved over the time since we first met. We became friends, and I used to write on blog and for, say, Bamboo Lounge or other kind of platforms. Uh, that time also the poetry was very, very spontaneous, but it was extremely raw. I was just trying to put across my feelings, whatever I was going through or what I saw around, but there was no constructive, you know, sort of uh, thought process in writing what I was actually writing. They were just merely words, I can say. But over the period of time, a lot of people uh, across the globe saw some kind of spark, I guess, and they encouraged me, despite the fact that there were many who said that I should stop it. And they not just encouraged, they mentored in a way uh, where they gave me freedom to do what I'm doing, but they would also nudge a little bit and suggest, improvements or kind of uh, how I can process a certain feeling or thought or so now at this point after so many years I think my poetic voice is a voice of dissent. It is also a voice of adventure, hope. That there is also
a lot of social issues and personal dilemmas, everything that leads it used to be a little um, constrained, now it has flowered even more, I can say. It also gives you a kind of a hope, not just that you are just eligible, you are just talking about your discomfort or your pain. It is also touches on things that that were and that might be. So lot of questioning, lot of memories, uh, lot of protest, and it's a very uh, mm, outspoken kind of a work for me now. So Oh, yeah. so there are a few things that I caught. There is one thing that even when you are uh, not into poetry that much, when you knew that you are very new to you are an amateur, you kept writing. You did not stop writing, and that's the thing that I want people to do. That Yeah, see, thing is that I, one has to be a learner first and forever. It's not you don't really you can't uh, say that you have arrived. If you have arrived, then you are no more there. It's what I think. yeah, It is perpetual exploration, learning, openness to criticism, to defeat, to rejection. This is what actually brings forth uh, good poetry. Wo- although I don't know, I mean, I'm just using the term. I don't know what is good or bad poetry, but something that touches the reader in some way. It conveys uh, the feelings that people understand. Yeah. okay. And there is one more thing that you said about mentoring, and I remember a quote from uh, Pankaj Tripathi, the renowned actor. He said that सहजता के लिए भी रियाज की जरूरत होती है और and when you talk about the riyaz, you need a guru also. That is the mentor. You need a lot of practice to improve your craft, and you need someone to guide you to go forward. हाँ, ये सच है. Should I speak in Hindi? या Yeah. ये काफी हद तक सच है कि अपने क्राफ्ट की इम्प्रूवमेंट, अपने थॉट्स को सही मायने में लोगों के आगे रखना, अ, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको किसी गुरु तो मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ, किसी ऐसे जने की जरूरत पड़ती है जिसको ऑलरेडी इस चीज का एक्सपीरियंस है, जो आपको बिना आपकी आवाज को दबाए या अपनी आवाज आपकी आवाज के ऊपर हावी होने दे, इसके बजाय आपको एक दिशा दे, खाली जस्ट अ नज। ये एक Mhm. मेंटरशिप पे काफी सवाल उठते हैं कि मेंटरिंग होनी चाहिए या नहीं। कई लोगों ने कहा है कि वो लोग मेंटर्स नहीं मानते इस कॉन्सेप्ट को, पर मुझे ये लगता है कि मेरे पर्सनल इवॉल्विंग प्रोसेस में कई लोगों का हाथ था, जिन्होंने मुझे कहने दिया जो मैं कहना चाहती थी। पर जहां जहां एक कविता जब छपती है तो अलग तरह से लिखी जाती है, मुझे ऐसे लगता है। और अगर आप अपनी डायरी में अपने शौक के लिए लिख रहे हैं तो एक अलग बात हो जाती है। कुछ पब्लिशिंग के नियम भी हैं, कुछ जब आप छपने के लिए मैगजीन्स में, लिटरेरी मैगजीन्स में भेजते हैं तो उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो जब आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं पोएटिक वर्ल्ड में, ग्लोबली, नॉट जस्ट इंडियन
पोएटिक सर्कल। तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको किसी की जरूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली शुरू से ही मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने ना केवल मेरे क्राफ्ट को इम्प्रूव करने में मदद की, बल्कि ओवरऑल एज अ पर्सन मुझे खुद अपनी लाइफ में भी बहुत चेंजेस महसूस हुए, उनके गाइडेंस से और उनकी सजेशन से। दे वर ऑलवेज सजेशंस। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपका मेंटर या आपको गाइड करने वाला जना आपके ऊपर चीजें फोर्स कर रहा है, आपको ये महसूस होने लगता है कि यू आर इनकेपेबल अंटिल दैट पर्सन इज विद यू, वो जरूरत एक क्रिच की तरह बन जाती है, तब वो बात नहीं होती। तो फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लोग राइटर्स बड़े मिल गए जो जिन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि एक टाइम के बाद उनकी जरूरत ना पड़े, यू नो अनलेस अनलेस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, आई डू थिंग्स ऑन माई ओन। सो ये जरूरी है, हाँ। तो आपने कुछ नया लिखा है अभी अ, कविता में? अभी रिसेंटली पिछले साल में थोड़ा मेरा कम रहा है काम। अभी कुछ सबमिशंस गए हुए हैं मुझे। होप आई एम जस्ट होपिंग कि दे आर एक्सेप्टेड। पर मैंने कुछ लॉकडाउन के दौरान मैंने एक लॉकडाउन पोएम लिखी थी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी वो। पर बहुत ज्यादा काम इंग्लिश में अच्छा। नहीं किया। आई हैव डन सम वर्क इन हिंदी, वो भी अभी कुछ टाइम से नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आर्ट में इन्वॉल्व थी, प्लस मैं आई वाज नॉट वेल आल्सो। तो उस प्रोसेस में कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। पर अब वापस जिंदगी कविता ही है, वो कहीं नहीं जाती, वो फिर वापस वी आर गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक। कोई पुरानी कविता जो आपको याद है, जो आपको अ, अचानक से याद आ जाती है? मैं बहुत खराब कविता पढ़ती हूँ, आप मुझे कहाँ सुधा रहे हैं। और एक वेफेयरिंग बताइए। मेरी सेकेंड बुक ऑफ पोएम्स है। उसमें एक छोटी सी कविता है। प्लीज मेरे पढ़ने के स्टाइल पे कोई हर्जा नहीं। ना। इसका नाम है सेंट। So the poem ओके। is: the winter breeze through the window, a spider dangling on a single strand of silk, thin branches trembling and weeping. But you, on such winter days, are the scent of the lemongrass, not wanting to leave the teapot. So this is the short poem. ओके। मुझे एक कविता आपकी याद आती है। आपने बीच में त्रिवेणी बहुत अच्छा हाँ, लिखा करते पहले थे। की बात है। अभी मैं आपको आपकी बातें सुन रहा था, तो मैं एक्चुअली वो कविता भी भूल गया। मुझे इसका मेंशन नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। आपको किसी त्रिवेणी के त्रिवेणी मुझे तुरंत अभी तो लिखती है नहीं क्या? याद आ रही है कोई, पर आई रिमेम्बर कि आप अच्छा। किस टाइम की बात कर रहे हैं। उसमें मैंने ब्लॉग पोस्ट भी किया था और हम्म, गुलजार को मेंशन किया था। अ, उन्हीं की हम्म। त्रिवेणी स्टाइल से इंस्पायर होकर लिखा था। और आपका क्या 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 चीजें आपको इंस्पायर करती है? इंस्पिरेशन अगेन इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टर्म, क्योंकि लाइफ के हर मोड़ पे हर चीज
whether it is animate or inanimate, everything inspires, but every inspired thought doesn't become poetry. आप उसमें से बहुत कुछ अपनी डायरी में लिख लेते हैं। मैं एक पेपर पेन, इवन इन दिस डिजिटल टाइम, मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ, चाहे मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या कहीं, क्योंकि कभी भी आपको कोई स्निपेट ऑफ कन्वर्सेशन, कोई साइन बोर्ड, कुछ भी नेचर से कनेक्टेड समथिंग, यू सी अ वेरी ब्यूटीफुल ट्री और अ वेरी or a leafless tree or some bird, some protest, some misery, something आपको कुछ भी इंस्पायर कर सकता है। तो कई बार कोई थॉट आता है जिसे आप नोट कर लेते हैं आगे के लिए, पर टू turn it into a poem that can speak to readers, you know, it's a craft, it doesn't, ये मैंने कई साल इस पे काम करने के बाद रियलाइज किया। शुरू में मैं भी ऐसे ही जो भी मुझे लगा लिख लेती थी, बट आई रियलाइज दैट हम we lot of time we think, we write something that we understand, but the reader doesn't, so when I write a poem, this is what I learned from one of the, uh, you can say, mentors. He's a friend, uh, that when you write something, it could be a poem or or story or anything, you have to read it and write it and read it as a third person, as a reader, not as yourself. आपको कई बार लगता है कि ये हमने ये लिखा है, पर ये जो पढ़ रहा है उसको नहीं मालूम। सो इंस्पिरेशन कैन बी एनीथिंग, सोशियो इकोनॉमिक, जो डेवलपमेंट्स हैं या पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं, जो एट्रोसिटीज हैं, वो सब चीजें इस थॉट प्रोसेस को फुएल करती हैं, पर उसको एक फॉर्म देना क्राफ्ट है, नो। So this is what I will say, that when you are writing something, it is not just your inspiration, it's your sweat and blood. You have to work on it to produce something that can impact. पोएट्री हो, फिक्शन हो, कुछ भी हो, पोएट्री में फायदा यह है कि कम शब्द में आप बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, तो आपको उसको इस तरह बनाना है कि वो इम्पैक्टफुल हो, नहीं तो देर इज नो पॉइंट of writing. Yeah. ओके। वैसे मैं भी मतलब पहले तो मैं डायरेक्ट ऑनलाइन ही लिख लेता था, फिर मैं पिछले 3-4 साल हो गए, मैं हमेशा अपने जी। पास डायरी रखता हूँ। और कुछ भी ख्याल आए मन में, मैं लिख लेता हूँ। कभी-कभी वो इतना मामूली होता है कि वो जाके मेरे फेसबुक स्टेटस में एंड होता ये होता है, है। मेरे भी बहुत सी तो चीजें जस्ट फेसबुक में रह जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार फेसबुक स्टेटस बनी हुई चीज पे इतने थॉटफुल कमेंट्स आते हैं कि वो बाद में कुल मिलाकर एक पोएम बन जाती है। या आपको वही आइडियाज और इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी आ सकते हैं। पर यार, अगर आप नोट करें हुँ, प्रमथेश, तो आप को लगेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लिखते हुए 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, प्रॉपरली ऑनलाइन, और पब्लिश करते हुए भी हो गया टाइम। मेरी पोएट्री में there's been a lot of change over the last say 5-6 years. सो मेरी हुँ, दोनों हुँ, किताबों में बहुत अंतर है। First book is more of a lament. Second one is absolutely a different kind of thing. Third, ओके। it's a collaborative one. वो एक अलग ही चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो उस पे अगर आप बात करना चाहेंगे तो we'll talk about that. हाँ, मैं आने ही वाला था। कोलैबोरेशन का आपने नाम लिया, मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कान आ ही हाँ, गई।
क्या क्या मैं जब कोलैबोरेशन करता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मुझे वो दूसरे जो लोग हैं उनकी तरह सोचना भी पड़ता है, फिर जाके मैं करता हूँ, कुछ कर पाता हूँ, वरना मैं जो लिखता हूँ वो भी मतलब मैं भूल जाता हूँ। See, the thing is, my collaboration with James, he's also my friend and guide and publisher. You can call him mentor also. So, uh, he हम्म, and I used to, he lives in England. So, we used to do a lot of ओके, exchange on Messenger. And sometimes, because he writes excellent poetry and stories and everything, he's a very, very accomplished person. So sometimes he would just reply to one of my, uh, chat messages in a line, the two lines of poems or something. And as a fun activity, I would also do that. So it continued for some time, that we would do something like that. And then we realized that we could perhaps turn it into a collaborative thing. And uh, why not? So we decided that we will give each other, alternate days. And alternately, we will do the first line, and it was a very, very ओके, impromptu kind of a thing. He would write, then I would write, and so on. And after a while, we will decide that I think, we think it is now done. And then we will just put it up in a document. And that's how that book came about. There was no there was editing later on, but there was no thought. There was no time for thought. We were just doing it uh, ओके, online in Messenger at the same time, impromptu. So so that was ओके, really, really challenging, because you really have to push yourself. You don't have time to even 10 minutes, 5 minutes to think, what should I write next. So you have to just pick up the thought from that line given by the other person. It was great fun doing it. So the book is out. It's called Duets. It also ओके, has a few poems where both versions are there after editing. Some of the things we didn't agree. We thought um, the first one that we did was better, so we put up both. But it's a very, very interesting thing how social media got us into, picking a book like this. ओके। So कभी झगड़ा नहीं, झगड़ा-वगड़ा होता था? पर हाँ, जितना स्टबर्न मैं हूँ उतने ही स्टबर्न वो भी हैं। तो उस पे पर ये है कि बहुत सी चीजें, एज आई सेड, एज अ स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज टेलिंग यू. And he never pushed me into accepting what he's saying. He would just say, these are my suggestions. And sometimes I would agree, sometimes I will not agree, and then we will put up both the things. He also never uh, judged me for my हाँ, opinion. That's the kind of respect and हुँ, compatibility and kind of understanding is needed when you're doing collaboration. You know? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि कभी-कभी ऐसे बोल देते कि नहीं, आई डिसोन दिस। नहीं, नहीं मतलब ये मज़ाकिया तौर पे ही बट जस्ट दे से दैट वो तो आई होता डिसोन है। दिस। हम लोग कई बार सोचते थे कि ये नहीं बढ़ रहा आगे या नहीं हो पा रहा है, बट द थिंग इज कि स्पॉन्टेनियस थॉट्स की जो अपनी एक उसका जो अपना मजा है, जो एक किक मिलता है ना उसमें, हाई यू गेट इन दैट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, दैट्स एब्सोल्युटली fascinating. उसमें
हाँ, उसमें आपके जो इट्स लाइक ए गेम। क्रिएटिव जो आपके माइंड को इतनी एक्सरसाइज मिलती है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप लेके नहीं बैठे हैं एक कविता को 10 दिन के लिए कि जब कुछ नया आएगा तो इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको 10 दिन तक एडिट करेंगे। अ, वो टाइम आपके पास है नहीं, तो इसलिए। हाँ, ब्यूटी absolutely. ऑफ I have that कोलैबोरेशन whole एक्चुअली। process and everything in a blog post on my blog for those who want to read how collaboration is done. Yeah. ओके। ओके। और डू यू हैव एनी फेवरेट जॉनर? Uh, Not really. I read and write a very diverse kind of it's a very diverse spectrum. Uh, मेरा कोई ऐसे पर्सनल फेवरेट जॉनर नहीं है, क्योंकि हर पोएट की अपनी या हर राइटर की अपनी एक विशेषता होती है, अपना एक फ्लेवर होता है, सो बट मैं थोड़ा ये इंस्टा पोएट्स वाला जो, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, पर some just don't, that's not really poetry, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ। बाकी देर इज नो पर्टिकुलर फेवरेट फॉर्म। एक्चुअली ये शुरू शुरू में सबको वो होता है। पहले हम लोग ब्लॉग में लिखा करते थे, आजकल इंस्टाग्राम में आ गया है। शुरू शुरू में सबको शौक होता है, इसलिए हम ये नहीं, नहीं कह बुरा सकते कुछ कि नहीं है, वो बुरा पर है। ये ए, आप कोई भी सी ब्लॉग में लिखना या इंस्टाग्राम में लिखना इज नॉट बैड। आई एम नॉट, फेसबुक पोएट्स कहलाते हैं कई, बहुत अच्छे पोएट्स हैं जिन्होंने कहीं पब्लिश नहीं किया है, वो खाली अपने फेसबुक के पेज पे लिखते हैं। दैट डजंट मीन दे आर नॉट गुड, दे आर समटाइम्स मच बेटर देन व्हाट यू एक्चुअली रीड इन लिटरेरी मैगजीन्स। पर कोई भी दो लाइन लिख लेना और कहना कि हम पोएट हैं, मैं तो अभी तक पोएट नहीं बनी, मैं अभी तक सीख ही रही हूँ, तो ये भी अपनी पर्सनल चॉइस है। आई मीन, आप इसको ठीक मान सकते हैं, मेरे लिए ये काम नहीं करता। मैं भी खुद को पोएट नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर किसी के अंदर एक कविता होती बिल्कुल, है जो ये वो सच कह है। सकता है। और, और जैसे कि कविता तो मतलब प्रोज से पहले आई है, तो मतलब कविता में कहानी बोलना ज्यादा आसान हो जाता है। अभी आप नॉवेल लिखेंगे तो पूरा 300 पेज का हो जाएगा, पर कविता क्या है, एक या 2 पेज में ही खत्म हो जाते हैं, आपको बहुत लगता लंबी है कि कहानी कविता लिखना बोल देते हैं। कहानी लिखने से आसान है? मुझे नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज मुझे मेरे मैं जब किसी की कविता पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अ, कविता पढ़ना ज्यादा पता आसान नहीं है। ब्रह्मदेश, क्योंकि मैं कई लोगों को जानती हूँ। देर आर पीपल हु हैव टोल्ड मी दैट दे डोंट अंडरस्टैंड पोएट्री। दे थिंक दैट अ थॉट विच इज इफ यू रीड extremely good poets, like I have friends like Nabina Das and Neetu Das, and there are many others I can name। उनको ये लगता है कि उनके पल्ले नहीं पड़ती, ये उनके शब्द होते हैं कि हम हमारे पल्ले नहीं पड़ती, दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं भी कई बार स्ट्रगल करती हूँ कुछ पोएट्स के साथ। अ, उस टाइम पे मेरा ये सजेशन रहता है कि आप सिंपलर राइटिंग, कंटेम्प्रेरी राइटिंग पढ़ें। एक तो आप बहुत पीछे ना जाएं, अपने लोकल
हम्म, रीजनल लिटरेचर को या फिर अपने इंडियन पोएट्री सर्कल के जो राइटर्स हैं को पहले एक्सप्लोर करें, उनको हम्म, पढ़ें। इफ यू आर इंटरेस्टेड, some people are not interested in poetry, you really cannot force it, you know. Hmm. यस, ये बात सच है। एक सच बात कहूँ तो मैं बैम्बू लाउंज शुरू करने से पहले मैं हाँ, कविता ना हाँ, पढ़ता था ना लिखता था। मैं दूर दूर से नाता था, लेकिन जब मैंने पहली कविता लिखी, जो कि अभी पढ़ने से मेरे को लगता है ये क्या हाँ, बकवास लिखा है, लेकिन बात ये है कि जब से मैं ये करने लगा तो मैं धीरे धीरे मैं खुलता गया। और मैं मुझे लगता है कि वो एक बस मेंटल ब्लॉक है कि हमें हाँ, लगता है कि हमें ये कविता समझ में नहीं आता है। एक बार हमने पढ़ना शुरू किया ये तो इंटरेस्ट की बात होती समझ है ना, में भी जो आ कुछ जाएगी। जैसे अब कई लोग हाँ। विजुअल आर्ट्स में होते हैं, कईयों को पोएट्री ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, हम्म, पढ़ने में उनको मजा नहीं आता, यू नो। सो इट्स समथिंग हम्म, इनहेरेंट, आपको जैसे कई लोगों को थ्रिलर्स अच्छे लगते हैं, कईयों को साइंस फिक्शन अच्छा लगता है। इट डिपेंड्स, यू हैव टू। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा बॉक्स्ड हैं, अपने थिंकिंग में, नॉट जस्ट कोई बड़े इश्यूज को लेकर नहीं, छोटे छोटे इश्यूज को लेके भी हम अपने को ओपन नहीं रखते हैं। अगर आप किसी को कहेंगे कि अरे आपको नहीं अच्छी लगती पोएट्री, पर फिर भी आप एक बार उसको पढ़िए, तो वो एकदम वहां पर एक दीवार आ जाती है। वो होना चाहिए। और हम्म, लिखने में, जहां तक लिखने का सवाल है, अभी कुछ 1 डेढ़ 2 साल पहले का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको। देर वर सम यंगस्टर्स हु वर for the first time getting into poetry, and they reached out to me also because I knew them. But the moment they had some kind of idea, they just needed some kind of a nudge to they don't read, first of all. Reading is extremely important. वो नहीं करते, और किताब छापनी है सबसे पहले, द मेन एजेंडा। और अगर आप उन्हें बताएं कि इसमें आप अभी और काम कीजिए, और किसी ने मुझे 150 कविताएं मैन्युस्क्रिप्ट बना के भेजी थी कि ये हम किताब की तरह छापना चाहते हैं, उनमें से मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं उनको। सो आई जस्ट सजेस्टेड कि शी शुड रीड मोर फर्स्ट, एंड not think of publishing these first. So that हम्म, was a great offense. So आजकल मैं ये सजेशंस नहीं देती किसी को भी, पर it is a it is true that unless you know you can't really learn everything in one day. It takes a lot of time to develop a thought into a poem, so reading is very essential if you are wanting to write. So ये बातें करने की जैसा है। मैं अब आप जब बातें कर रहे हैं, मुझे आप क्या बोलने की कोशिश कर रही है मैं अच्छी तरीके से सुनूंगा, फिर आहरण करूंगा कि आपने क्या कहा है। उसके बाद मैं आपको वापस कुछ कहूंगा, उसी तरह आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो तभी कविता भी उसी तरह की है। हम दूसरों बिल्कुल। के कविता पढ़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, कुछ अ, उस तरह से ही हाँ, ये हमारी बहुत कविता जरूरी भी है कि आप अच्छी होगी। अच्छे पोएट्स को डिस्कवर करें। मैं बार बार कहती हूँ कि अपने कंटेम्प्ररी पोएट्स जो अपने इंडियन पोएट्री सर्कल में हैं, उनको विदेशी कवियों को भी पढ़ना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पर हम्म, जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल के माहौल पे लिखते हैं लोग, और जो अपने रीजनल पोएट्स हैं,
उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। उनसे आपको एक डायरेक्शन मिलती है, एक लाइफ के प्रति, राइटिंग, रीडिंग, ऑल, मेकिंग आर्ट लाइक आई डू, पेंटिंग्स ऑल्सो, एंड lot of other things. हम्म, They open you from inside. There is, it is not just about putting words on paper and sending them off for, publishing in some magazine or something to get your name published. It is also a craft of evolving from within. That is what every art should be that. हम्म। मेरे भैया ने एक बार कहा था, मैं जब किताब पढ़ते रहता था तो कहा कि कभी दूसरे बाहर के किताबी वो को भी पढ़ो तो पता चले कि बाकी दुनिया क्या सोचती है। फिर मैं विदेशी किताबों को पढ़ रहा था तो मेरे से छोटे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि आप घर की किताबों को भी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं। दोनों तरफ सोचने का ढंग पता चलेगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, ये तो है। आप आप क्या सोचते हैं। अब जैसे मेरी जो रीडिंग है वो खाली ब्रिटिश या अमेरिकन ऑथर्स या कुछ हम्म, सिलेक्टिव यूरोपियन राइटर्स तक सीमित नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अभी जैसे कुछ टाइम पहले फिनलैंड के विषय में कुछ चर्चा हो रही थी, तो मैंने खोज के निकाले कुछ पोएट्स, फिनिश पोएट्स, और उनके ट्रांसलेशंस पढ़े। तो लगा कि हम्म, कितना कुछ पढ़ने को है हमारे पास, शायद उतना टाइम ही नहीं है। इतने अच्छा लिखते हैं लोग, और इतनी वैरायटी, इतना वास्ट स्पेक्ट्रम है पोएट्री का, कि आप बस पढ़ते रहिए। और ऐसे ही हमारे इंडियन पोएट्स में है। मैंने नॉर्थ ईस्ट के कई पोएट्स को और कई और ऑथर्स जो फिक्शन लिखते हैं उनको पढ़ा है, और मुझे लगता है कि दे आर वेरी वेरी, यू नो दे आर नॉट गिवन देयर ड्यू। बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हम्म। हाँ, ये बात आपने सच कहा क्योंकि हम लोग जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखते हैं हाँ, तो इवन मतलब क्षेत्रीय बहुत कम भाषाओं लोग में और इंग्लिश सुनते में हैं। भी। इंग्लिश भी जो मैंने, है। नॉट हम्म, ट्रांसलेशंस बट एक्चुअली इंडियन पोएट्स who write in English from हम्म, northeast and places which are not really in the हम्म, main spectrum, they write extremely good. So it is important to read them. हम्म। और हिंदी कविताओं में आप कोई कोई हिंदी कवि कविताओं में आपको बहुत लोग अच्छा हैं। लगता है। कुछ विख्यात लोग भी हैं। सविता सिंह हैं जो अच्छा लिखती हैं। राजेश जोशी हैं जो है बहुत अच्छा लिखते हैं। हम्म, कुछ फेसबुक पे भी मेरे जानकार लोग हैं जो बहुत अच्छी, मेरा हिंदी से मतलब हिंदुस्तानी रहता है, जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों का मिक्स रहता है। और मुझे अभी अचानक ऐसे नाम याद नहीं आ रहे हैं, पर तौसीफ हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। अ, तो मैं अच्छा। काफी पढ़ती हूँ इन लोगों को, और भी कई राइटर्स हैं। इस समय मुझे एकदम से उनके नाम नहीं याद आ रहे हैं, पर हाँ, उस वहां भी मैं ये ध्यान रखती हूँ कि समकालीन जो है उनको भी पढ़ा जाए। बहुत सी चीजें रेलेवेंट रहती हैं थ्रू आउट सेंचुरीज, थ्रू आउट एजेस, बट ये जरूरी रहता है कि जो आजकल का माहौल है और जिस तरह का सामाजिक अपीवल है हमारे देश में, उससे संबंधित राइटिंग्स को पढ़ा जाए। हम्म। और
ये ये जो फिल्मी गाने हैं आजकल तो वहां में भी बहुत अच्छी अच्छी राइटर आ गए हैं। उसमें से कोई कोई पसंदीदा मैं जरा कोई जो आपको मैं लगा कि अ, या क्या लिखा फिल्मी है। माहौल से थोड़ा दूर रहती हूँ, तो मैं मुझे इस तरह नाम नहीं याद आ रहे। शायद मैं अभी भी पुराने कैफी साहब या गुलजार साहब के ही पीरियड में फंसी हुई हूँ। पर अ, हाँ हाँ, कुछ हैं नए लोग जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पर आई कांट रियली रिमेम्बर द नेम्स एज सच। कोई मुझे तुरंत याद नहीं आ रहे। ओके। तो अभी क्योंकि हम लोग वापस आते हैं हम लोग क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कविता नहीं लिखते हैं उनको कैसे कविता लिखने में हम इंस्पायर करें, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग हैं जैसे आपने कहा कि इंस्टाग्राम में वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड है कि वो लोग रोज कुछ ना कुछ लिखेंगे, चाहे अच्छा हो या ना हो वो लोग कुछ रोज लिखेंगे। फिर धीरे धीरे वो लोग बेहतर होते जाते हैं। जो लोग अभी तक कविता में नहीं अ, आए हैं उनके लिए कविता कुछ आप पढ़ना बोल या सकते हैं। लिखना बहुत पर्सनल चीज है। इसमें अगर आपको अंदर से इंटरेस्ट उस फील्ड में जगेगा, कुछ आप पढ़ेंगे कहीं पर। अगेन द व्हाट आई विल से इज, डोंट कंस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, आप अपने को बॉक्स मत कीजिए किसी उसमें। कभी कभी कोई कविता भी पढ़ लीजिए, पढ़ के देखिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने दो चार कविताएं पढ़ ली और आपको अच्छी भी लगी तो आपका मन करेगा कि आप लिखें। लिखना, राइटिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इनबॉर्न या पर्सनल चॉइस। तो केवल वो लोग जिनको अंदर से मन करता है, दोज हु वांट टू राइट पोएम्स, बट दे फील कहाँ से शुरू करें, वेदर दे आर केपेबल ऑफ इट और नॉट। हम्म, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि यू हैव टू जस्ट राइट एंड रीड एंड रिजेक्ट, यू नो एंड डिस्कार्ड, एंड देन डू द प्रोसेस अगेन। ये ही तरीका है। मैं बहुत सी चीजें लिखती हूँ जो कभी कहीं नहीं पहुंचती, डस्टबिन के अलावा। उनको भी, और वो क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन लिखा जाता है, तो वो मेरे एक फोल्डर में वो सब रहता है जो कहीं नहीं गया। क्योंकि कई बार आप, जिसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है राइटर्स ब्लॉक, आप उसमें फंस जाते हैं। तो वैसे ये कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट अ वे हम्म, ऑफ यू नो procrastinating or something. But ऐसे में आप उस फोल्डर को खोलिए, तो आप जब उन थॉट्स को, उन पुरानी कविताओं को, उन छोटे छोटे स्निपेट्स को, कोई कहानी, कोई ममर, कोई कोई चीज आप पढ़ेंगे, तो उसमें से आपको बहुत सारी चीजें निकल आएंगी ना, लिखने के लिए। तो उन लोगों के लिए जो कविता लिखना चाहते हैं, उनके लिए कविता पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। उनके लिए ये जरूरी है कि वो हमेशा अपने पास कोई कागज कलम रखें, अपने थॉट्स को उसमें, ये ना सोचें कि इसको कैसे राइम करें, ये मीटर में है कि नहीं, ये कविता बन सकता है कि नहीं। ये थॉट्स नहीं रखने हैं। खाली जो आया विचार वो लिख लिया, उसके बाद उस पे कभी आप दोबारा पहुंचे और काम करें, वो एक अलग प्रोसेस है। सो बिगनिंग ऐसे ही होती है। और यू नो
following somebody, reading somebody, admiring and getting inspired from some poet is one thing, and copying, trying to become them, to copy their art, to copy their style is something that I don't agree to. आपकी अपनी वॉइस होनी चाहिए. मेरी किसी भी कविता में ज्यादातर कोई राइम मीटर कुछ नहीं होता है. इट्स अ फ्री हैंड काइंड ऑफ. और मुझसे बहुत बहुत अच्छा लिखने वाले जिन पोएट्स आई लुक अप टू, उनमें भी बहुत लोग हैं जो फ्री हैंड लिखते हैं, फ्री स्टाइल पोएट्री है उनकी. तो या, बट यू रियली कैन नॉट ओके. टेल पीपल कि आप कविता लिखिए. ये अंदर से आने वाली एक आवाज है जिसे उसे उन्हें फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है. हाँ, ये तो बात है कि हम किसी को कह नहीं सकते कि आप हाँ. लिखिए, लेकिन तो हम ये तो कह सकते कि आप पढ़ के देखिए. एग्जैक्टली, यू हैव टू. कविता बहुत ही If खूबसूरत you होती are है. if you are a reader, if you love reading, you should read everything: fiction, non-fiction, uh, essays, biographies, poems of all sorts, सब कुछ. और अपनी लैंग्वेजेस, हम्म, ये जो और अंग्रेजी और हिंदी में फंस जाना है ना, उससे बाहर निकल के अपनी भाषा को इस्तेमाल करना, अपनी मदर टंग को इस्तेमाल करना भी जरूरी है. मैं तो वो भी किताब पढ़ता हूँ जो कि मतलब जो मेरे सोच से बिल्कुल ही विपरीत है. जैसे कि अ, कोई अगर पॉलिटिकल बातें ही कर रहे हैं, मैं उस पॉलिटिकल बिलीफ में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं सुनना हाँ, चाहता हूँ कि ये वो सही आखिर तरीका क्या है. कहना क्या चाहता है. तो हम्म, तो उससे भी मुझे बिल्कुल मिलती कविता होगी, लिखने में क्योंकि आप एक अपने इंस्पिरेशन विचारों मिलती में है. कैद नहीं हैं, आप दूसरे का पर्सपेक्टिव भी पढ़ रहे हैं. आप, हो सकता है कि हम्म, जिसको आपने बिल्कुल आपके पॉलिटिकल या आपके जो विचार हैं जो उससे बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, और आप एकदम उसके अगेंस्ट हैं मॉरली और एंड अदरवाइज, पर पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको कहीं इट टचेस सम कॉर्ड इन यू समवेयर, कोई सेंटेंस, कोई थॉट जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा कुछ लिखने के लिए. हम्म. तो ये जरूरी है कि आप हर तरह की चीज पढ़ें. आ, अब थोड़ा पर्सनल आते हैं, ठीक है. हाँ, अगर आप पूछिए. बुरा ना माने तो. हेलो. आ, आप डोगरा तो I am आप married into हिमाचल से a कि Himachali जम्मू कश्मीर से family. हैं? It मुझे was इतना. that part of Himachal was earlier part of Punjab, so it's I don't know what it is. It was called some region, but they are not from Jammu and ओके. Kashmir. These are from Himachal. ओके. ओके. तो वहाँ Uh, से हिमाचल से कुछ इंस्पिरेशन मिलता है क्या? इंस्पिरेशन मेरा मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरी मैरिटल लाइफ बहुत ही टर्बुलेंट रही, और मैं उनके अपने इन लॉज के विलेज और जो उनका इंसेस्ट्रल विलेज वगैरह है वहां गई हूँ कुछ टाइम पर. अम, हिमाचल और हम्म. उत्तराखंड से जो मेरा नाता है, वो मेरा प्री टीन से है, जब मैं ट्रैकिंग जाती थी और यूथ हॉस्टल से जुड़ी हुई थी. और हिल्स से मेरा एक पुराना प्यार है. और मेरी पैदाइश नैनीताल की है. और पहाड़ों, नदियों, झरनों से एक
मेरा रिश्ता है जो रोमांटिक नहीं है। कभी कभी होता है पर वैसे नहीं है। अ, बहुत संजीदा रिश्ता है। बाद में मेरा बेटा भी रानीखेत में पढ़ा, काफी साल हम आते रहे वहाँ। और बहुत सी चीजें होती हम्म, हैं जो नेचर आपको सिखाता है। हिमाचल और उत्तराखंड में मैंने बहुत ट्रैवल किया है, और मेरी बहुत सी पोएम्स मेरे ट्रैवल या मेरे एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई हैं। मेरी लगभग सारी ही कविताएं, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, बहुत पर्सनल हैं। मेरे निजी अनुभवों से लिखी गई हैं ज्यादातर। सो दिस इज माय कनेक्ट विद हिमाचल। अभी मैं दिल्ली के अभी आप पास कहाँ बॉर्डर पे हूँ। अभी ये दिल्ली, एक पैर दिल्ली में और एक गाजियाबाद में, ऐसे रहता है मेरा। तो ये दोनों जगह ही कुछ कवि इता लिखने के लिए कुछ खास मतलब क्या बोल रहे हैं, इट्स नॉट ए अ, फेवरेबल मैं प्लेस फॉर मेरा एक राइटिंग पूरा पोएम्स। सेक्शन दिल्ली पोएम्स का है मेरी किताब में। मेरी जो हिंदी की पोएम्स मैं लिख रही हूँ वो हिंदी दिल्ली की पोएम्स हैं। एक शहर ये भी करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये किताब में अ, ये सिटी जो है, दिस इज हु आई एम, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं दिल्ली के वेरियस हिस्सों में रही हूँ। और इस शहर, कहते हैं ना, एक शहर इश्क है, वैसे ही दिल्ली है। गाजियाबाद से मेरा कोई खास भाव नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी हाउस मेरे लिए है, होम नहीं है अभी भी। तो दिल्ली ही मेरे लिए घर है। और मेरा बहुत सारा काम ब्लॉग पर भी दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स, द हेरिटेज ऑफ द सिटी, द पार्क्स, द नेचुरल हेरिटेज एंड द बिल्ट हेरिटेज, दैट हैज बीन रियली इंस्पायरिंग इन माय वर्क। और मैंने आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ blog posts about our monuments and our natural heritage. मेरी पोएट्री में आपको बहुत सारा दिल्ली का फ्लेवर मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। सो अपने सारे गुण अवगुण के साथ मुझे दिल्ली से बहुत प्यार है फिर भी। ना, चाहे मैं कितना कह लूं कि मैं यहाँ से छोड़ के कहीं पहाड़ में बस जाना चाहती हूँ, या कहीं खो जाऊं तो पहाड़ में मुझे ढूंढ लेना, पर वापस दिल यहीं अटका रहता है। सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे हमेशा ना लगता था, शायद मेरे मेरे अंदर एक मेंटल ब्लॉक सा है कि दिल्ली में या तो शॉर्ट स्टोरी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं कि मतलब उतने सारे कहानियां भी होंगे, और नॉवेल भी काफी बनेंगे दिल्ली में, चाहे कुछ भी जॉनर हो। तो सुन के अच्छा लगा कि कविता भी आप लिख रही है, क्योंकि इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ही वो है कि आप कहानी कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आसपास कहीं कहीं से भी कहानी ढूंढिए, उसी हाँ, को दिल्ली आप में कविता पोएट्री का बहुत के अच्छा पे जाहिर कर सकते हैं। माहौल है। हालांकि मैं ये जो पोएट्री सर्कल्स हैं इनमें मैं शामिल नहीं होती। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस होल यू नो हम्म, पोएट्री रीडिंग कॉन्सेप्ट। पर दिल्ली में बहुत बहुत सारे बहुत अच्छा लिखने वाले पोएट्स हैं।
और हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, शायद अपनी मातृभाषा में भी लिखते हैं, और शहर के बारे में भी लिखते हैं। मैंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं जो एक सेंसिटिव तरीके से शहर के को डिपिक्ट करती हैं। और मेरा जो हिंदी का काम चल रहा है, दिल्ली पोएम्स का, वो भी कुछ इसी तरह का काम है। तो पहले तो यहाँ काफिया वगैरह शुरू हुआ था, यासीन ने शुरू किया था। वो अनफॉर्चुनेटली, सी देर इज a lot of politics when you get into organized kind of a, you know, पोएट्री। आप फेस्टिवल्स, रीडिंग्स इसमें इन्वॉल्व हो हम्म, जाएंगे तो वो एक बहुत competitive, बहुत एग्रेसिव टाइप का माहौल है। पर बहुत से लोग पर्सनल लेवल पे, छोटे लेवल पे मिलते हैं, और अपनी कविताएं, अपने लेख, अपने मेमोरीज शेयर करते हैं। सौम्या कुलश्रेष्ठ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रयास में हैं कि दिल्ली में कविता का मंच बना रहे। हम्म, सुन के बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि ये जो शहर के ऊपर कविता लिखना, एक बहुत दिन हो गया मैंने कुछ पढ़ा नहीं है कि शहर के ऊपर कविता लिखा आ जाए। क्योंकि जो क्या, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक कविता मैंने पढ़ा था जिसमें मतलब एकदम छोटी छोटी बातों को मतलब बताया जा रहा है कि ये जी। वो इंसान कैसा है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप पूरे विजुअलाइज कर सकते हैं। उस तरह की हाँ, कुछ कविता कुछ काम मेरे आ ब्लॉग रही पर है, है जो तो आप पढ़ अच्छा सकते अच्छा हैं, लग रहा है सुन के। दिल्ली के ऊपर। हाँ। और आपने जैसे बताया कि वो जो ऑर्गेनाइज्ड वाला पोएट्री, मुझे वो इंडी ब्लॉगर याद आता है जब हम लोग आखिर में सब लोग बस सब कुछ भूल भाल के हाँ, पर इंडी कॉन्टेस्ट में ब्लॉगर, चले आपने जब गए, सिर्फ इंडी कॉन्टेस्ट के लिए ब्लॉगर ही की लिखते बात थे। उठाई है तो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं और भी, उनसे कहीं ज्यादा इंडी ब्लॉगर में एक फ्रीडम थी। वो अलग बात है कि मीट्स बाद में स्पॉन्सर्ड होने लगी, और कॉन्टेस्ट और इन हम्म, चीजों में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे। शायद यही रीजन था कि इन लोगों ने गैप दे दिया है, और द प्लेटफॉर्म इज नो लॉन्गर एक्टिवली वर्किंग। किसी एक प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी हो जाती है, स्पॉन्सरशिप हो तो उनके हिसाब से चलना जरूरी हो जाता है, ये सब चीजें आ हम्म, जाती हैं। पर मुझे लगता है कि मेरे काम को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इंडी ब्लॉगर ने बहुत बहुत बड़ा हाथ उनका था। और आई ऑल्सो गॉट द पोएट्री अवार्ड हम्म, ऑल्सो, इंडी ब्लॉगर का। और पर ये सच है। नहीं, मैं मुझे इंडी ब्लॉगर से कोई शिकायत नहीं है। मैं यहाँ में क्लेरिफाई करता हूँ, मुझे इंडी ब्लॉगर से कोई शिकायत नहीं है। मुझे क्योंकि मुझे भी लोग जानते हैं कि इंडी ब्लॉगर की वजह से ही। लेकिन बात यह है कि वो हमारा दोस्त था कि हम कॉन्टेस्ट बह वगैरह का, गए। सी, हम हम लोगों लोग ने एक, ने हम सब लोग, बाकी वी आर, कुछ एज लिखना यू नो, छोड़ ही यू दिया। योरसेल्फ, वी आर ऑल ओल्ड टाइमर्स ऑन इंडी ब्लॉगर, हम लोग नहीं थे। और एक टाइम आ गया था, उसके हम्म, बाद हम सब ने मीट्स वगैरह हम्म, में जाना बंद कर दिया था, यू नो बिकॉज इट बिकेम मोर देन जस्ट राइटिंग, शेयरिंग, हम्म, यू नो वो उसका कॉन्सेप्ट ही बदल गया था। तो हम अपना, चाहे हम ब्लॉग पर लिखते थे, और ब्लॉग का हम्म, एक अपना जो फ्लो था वो भी चेंज हो गया था, यू नो
मुझे 12 साल हो गए वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करते हुए, हम्म, पर पिछले 10 सालों में शायद ही मैं किसी और ब्लॉग पे जाके मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, कमेंट किया है। वी हैव आई थिंक मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग। हम लोग लिखते हैं तो अपने शौक के लिए लिखते हैं, और लोगों जो जिन तक वो पहुंचना चाहता है वो पहुंचता है। यू नो, इज नो सच थिंग। अब हम लोगों के साथ, खास तौर पे आप या हम्म, ऋतु है या हम लोग हैं, जो पुराने ब्लॉगर्स थे, हम्म, इंडी ब्लॉगर से जुड़े हुए, ब्लॉग्स अभी भी चल रहे हैं, पर उतनी उसमें हम उसे उतनी अहम जगह नहीं देते जैसे पहले देते थे। शायद वी हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स। जैसे आपने इंस्टाग्राम का हम्म, जिक्र किया था, मेरा बहुत सा छोटा मोटा काम आजकल इंस्टाग्राम पर होता है, क्योंकि हम्म, मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो हम्म। हाँ, लेकिन एक बात है कि वो कम्युनिटी वाली फीलिंग जो है वो हाँ, वो जो इंडी ब्लॉगर में थी, वो अभी अभी नहीं रही। चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, वो कम्युनिटी वाली फीलिंग अभी नहीं रही। अभी हम लोग बस लिखते हैं, छोड़ दिया है। फिर अच्छे कमेंट आए तो खुश हो लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग एक दूसरे इसका को चैलेंज करें प्रमुख कि तुम, टीम आई हम गेस सभी होता इस है चीज पे उसकी लिखते अपनी। हैं, फन जैसे आई आता ऑलवेज है। से कि जब हाँ। यू प्लांट, यू सो सीड्स, उसमें से प्लांट निकल, फूल, कली बनती है, एक फूल बनता है, आप उसकी खुशबू लेते हैं, या आप उसकी हम्म, खूबसूरती, अगर वो खुशबू वाला नहीं भी है तब भी आप उसको एडमायर करते हैं। एक टाइम के बाद उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, पेड़ छोड़ देता है, इट हैज गो डाउन टू द अर्थ एंड बिकम मैन्योर और वॉट हम्म, एवर। सो मुझे ये लगता है कि इसी तरह हमारे क्राफ्ट्स का है, ब्लॉगिंग का है, और चीजों का है, कि हम उसका उसकी जो महक रहती है, उसकी जो खूबसूरती रहती है, एक इंटरेक्शन, एक जज्बा रहता है, वो एक टाइम तक रहता है। बहुत से लोग हैं जो अभी भी बहुत रिलीजियसली, रिलेंटलेसली ब्लॉग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और कुछ लोग उसमें से अलग होके कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ अब। मेरे ब्लॉग पे आप देखें तो पोएट्री आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। वो खाली लिंक्स वहां डाल देती हूँ कि कहाँ पे क्या छपा, पर मैं उस ब्लॉग को अलाइव रख रही हूँ, रेसिपीज डाल के, कुछ और काम करके। दिल्ली पे पूरी सीरीज कर रही हूँ मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, जस्ट टू कीप दैट थिंग गोइंग, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे एक्चुअली मेरी मुझे आवाज दी, तो मैं उसे बंद नहीं करना चाहती। पर आई हैव ऑल्सो मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स। तो आगे बढ़ना ही स्वभाव है हमारा, आई गेस। हम्म। लेकिन ये बात भी सही है कि आज जो हम दोनों बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उन, उन उसमें कहीं ना आज कहीं बहुत इंडी बहुत ब्लॉगर का गहरी हाथ है। दोस्तियां बनाने में है। और, जी। इतनी देर मैं शायद आपसे करीब 10 साल बाद बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया है। हाँ, हम बिल्कुल, लोग बात क्योंकि कर किए जा हम रहे हैं, लोगों जैसे कि कल हम की लोग बात एक हो। अलग ही तरह के धागे से जुड़े हुए हैं शायद। इट इज नॉट जस्ट, see, this is what writing has done, blogging has done. It has gone beyond just putting up a blog post and circulating it, among रीडर्स। बहुत से दिल एक दूसरे से जुड़े, बहुत से लोग, अब ऋतु वगैरह हैं, इन लोगों से हम, ऋतु से मिले हुए मुझे सदियां हो गई हैं, बात भी किए हुए कई महीने हो गए, पर मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम कहीं भी दिखेगी या कुछ है तो हम वही वैसे ही रहेंगे जैसे
15 साल 20 साल पहले थे, तो इस तरह के हो गए हैं। हाँ, अब मैं एक्चुअली ये इंडी ब्लॉगर वाला जो बात है वो मैंने मसला इसलिए ने उठाया था कि आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग एक कम्युनिटी बनाए कि कहे कि ऐसे कविता लिखने के लिए कि अ, कविता लिखने के लिए नहीं, मतलब ये थॉट है, इस पे आप कुछ लिखो, तो वो कविता भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, या कुछ भी, दो लाइन किसी ने बस वैसे ही लिखेंगे, मुझे ऐसे लगता है, या कहीं और लेके चले गए, कुछ मजाक ही किया, तो वो इस तरह करने के से लिखने का Pramatesh, there are a lot of कुछ groups which are doing आगे this on बढ़ेगा क्या? Facebook, where people go. There are poetry groups, there are writing groups, there are groups where you can, share your work for constructive feedback. मैं बहुत कुछ की member भी हूँ, पर मुझे लगता है कि writing is a very it's a personal thing, yet these groups do help in encouragement. They do help in providing you some kind of guideline. पर ultimately आपको उसमें से you have to filter out what is good, needed for you, not for you, needed for you. आप हर चीज को हम्म, you can't take everything by word and think कि अगर किसी ने कोई सलाह दी है तो यही होना है या क्या है। ये आपकी अपनी एक आर्ट की डेवलपमेंट है। ये ब्लॉग वेबसाइट वगैरह पे काम नहीं करेगा मुझे लगता है। एंड मैं समहाउ इस पूरे ग्रुप्स और इंटरैक्टिव ग्रुप्स वगैरह से थोड़ा अलग हो गई हूँ। तो मैं पर्सनली मेरे कुछ हम्म, लिमिटेड लोग हैं जिनसे मेरा क्रिएटिव इंटरेक्शन इस तरह का रहता है, जहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मिलते हैं, या मैं लेती हूँ या वो लोग देते हैं। ओवरऑल पर्सनली मैं नहीं सोचती कि दीज थिंग्स हेल्प टू मच, पर कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रुप्स ऑन फेसबुक। उनको जाके, कुछ पब्लिक ग्रुप्स हैं, कुछ प्राइवेट ग्रुप्स हैं, आपको जाके वहां पर खोजना पड़ेगा कि आप कंटेंट को रीड करके, रिस्पॉन्सेज को रीड करके आपको देखना पड़ेगा कि वेयर यू कैन, यू फील कंफर्टेबल एंड या मतलब अलग-अलग चीज़ें पहले कोशिश करना पड़ेगी, उसके बाद पता ढूँढना पड़ेगा कि आपके लिए खुद को बिल्कुल, क्या बिल्कुल, आपकी आवाज़ खुद से कैसे बाहर आती है। कुछ भी काम कर सकता बिल्कुल। है, कुछ भी वो हो आइडेंटिफाइंग सकता योर है, लेकिन पैशन, पहले आपको आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफ़ाई योर करना प्लेस, पड़ेगा। व्हाट यू नो एक अंदर से हुँ, आपको चीज महसूस होगी कि हाँ, ये दिस इज द पाथ आई वांट टू टेक। बहुत से लोग हुँ, ऐसे भी मैं जानती हूँ जिन्होंने कुछ कविताएं लिखनी शुरू की थी और उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, हुँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे शिफ्टेड टू अदर थिंग्स। कुछ ने तो राइटिंग का ही बंद कर दिया और वो आर्ट में चले गए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी उस दिशा में जा रही हूँ, फिर मैं अपने को वापस ले आती हूँ। हुँ, पर मेरा किस्सा तो बहुत सा मेरे मानसिक और दूसरे जो इश्यूज हैं उनसे भी जुड़ा रहता है। कभी मुझे कोई चीज बिल्कुल नहीं सूट करती, लिखना बिल्कुल नहीं हो पाता, तो मैं आर्ट का सहारा ले लेती हूँ। अगर वो नहीं हो रहा तो मैं कुकिंग में चली जाती हूँ, पर वॉट एवर कीप्स मी सेन। तो ये भी एक अपनी पर्सनल वो रहती है। मैं बहुत
डिसिप्लिन राइटर नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत जरूरी है एक अच्छा राइटर होने के लिए। तो आप बहुत ही बेहतरीन राइटर है। आप ऐसा मत बोलिए। और मैंने हमेशा आपको एक बेहतरीन राइटर के हिसाब से ही देखा है। और ऐसा आपको लगता है कि आप 12 साल पहले अच्छा नहीं लिखते थे, पर मैं आपको थैंक यू पहले दिन से आप ही आपको बहुत काइंड हैं, लगता है कि आप अगर बहुत ऐसा ही अच्छा सोचते हैं तो। पर लिखती है। हाँ, मैंने एक चीज जो मैं यहाँ पर नए लोगों के लिए कहना चाहूंगी, आपने ये अच्छा किया ये बात उठाई। अ, ये चीज मैंने कभी नहीं की। अपनी आर्ट या अपने क्राफ्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू नो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि जो मैंने लिखा है वही सही है और हुँ, आप किसी की सलाह ना लें। सीखना भी जरूरी है, पर हमेशा अ, अपने को डाउट नहीं करना चाहिए। मैंने ये बहुत किया, मुझे अभी भी जेम्स कई बार कहते हैं कि तुम खुद इसको एडिट करो। मैं एक चीज लिख के उन्हें फट से भेज देती हूँ कि ये देखिए कि ये मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, तो उनका पहला रिस्पॉन्स रहता है कि रीड इट एज अ रीडर, नॉट एज अ राइटर, एंड देन एडिट इट एंड देन सेंड इट टू मी। वो जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है। और अपने और कई बार ऐसा रहता है कि ही टेल्स मी कि तुम ऐसे ही अपने को डाउट कर रही थी, यू हैव डन वेरी वेल, यू नो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, और अपने को आप डाउट ना करें, अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट ना करें, और क्रेडिट जहां ड्यू है वहां दें, पर एक हद से ज्यादा नहीं। अपने को क्रेडिट भी देना सीखें, यू नो। बिल्कुल। मेरे अंदर बहुत मतलब बहुत ओवर भीड़ में आई। कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस पूरा हमेशा होना चाहिए। यही सोचती रही कि इन कि लोगों ने अगर नहीं किया होता तो मैं कुछ नहीं होती। पर मुझे ये बाद में बहुत रियलाइज हुआ, मेरे बेटे ने खास तौर पे मुझे इस चीज के लिए कहा कि unless you would have written it, they wouldn't have helped you in any way. So in the beginning, the thoughts and the writing is yours. So give credit to that. तो आपने किसी चीज पे इस चीज को ठीक करने के लिए अ, कुछ ये अपने काम ऊपर किया वर्क जो करने का हम काम लोग है। को मैं भी करती हेल्प रहती कर हूँ, सकता उसमें है। गिर फिसल भी जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। ये दिस इज समथिंग वन हैज टू, जैसे आप किसी भी चीज को लर्न करते हैं, आप नॉट इन राइटिंग, इन रियल लाइफ आप कुछ सीखते हैं। एक बार आप में कोई कमी लगती है आपको, ये एक पर्सनल वो रहता है। मैंने बहुत से ऐसे राइटर्स देखे हैं जिनके कोई मेंटर्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना लिखते हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं, यू नो। दे उनसे अगर पूछा जाए तो कहते हैं कि दे हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देयर राइटिंग, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो ये एक पर्सनल चीज है जिसमें इसीलिए मैंने बोला कि जो हम्म, लोग नया लिखना चाहते हैं, अगर वो सीखने के लिए अपने को खुला रखें, पर अपने क्राफ्ट पे भी कॉन्फिडेंस रखें। और उसके लिए जरूरी है कि वो पढ़ें और रिजेक्शन की आदत डालें। अभी मैं 2-3 दिन से बहुत अच्छे राइटर्स हैं, सुमना है या एक दो और राइटर्स हैं, अब्दुल्ला खान हैं, इन्होंने अभी कुछ पोस्ट डाली थी अबाउट रिजेक्शन लेटर्स। इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार बहुत बहुत अच्छे राइटर्स के 100-100 बार, 200-200 बार किताबें, उनके आर्टिकल्स रिजेक्ट होते हैं। दैट शुड नॉट स्टॉप यू एंड मेक यू थिंक कि यू आर वर्थलेस, यू नो।
You have to keep going on. Yeah, Yeah. it is. It is. Hmm. Diligence is important. Hmm. ठीक है, आज काफी वक्त हो गया है, अभी 1.25 घंटे हो ही गए तो अ, तो आज यहीं पे Thank you, खत्म Pam. करते हैं। थैंक यू, आपने मुझे मेरे पॉडकास्ट पे ज्वाइन किया है। अ, अ, तो मैं जाने से पहले Thank एंकर डॉट एफ एम को थैंक यू कहूंगा, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि हर कोई आसानी से पॉडकास्ट शुरू कर सकता है। और ये सिर्फ हम लोग सिर्फ पॉडकास्ट होस्ट ही नहीं कर सकते हैं, ये अलग अलग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म Yeah. में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है, जैसे कि बहुत लोग हम लोग को सुन सकते हैं। आप ये करते तो रहिए। मैं भी थैंक यू। बाकी के पॉडकास्ट भी आप करते रहिएगा, मैं भी आके सुनूंगी। जाने से पहले, इट्स अ हाँ, लर्निंग बोलिए। एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। और जाने से पहले मैं एक और वो कहना है, इफ एनीवन वांट्स टू join me in this podcast, do mail me. I will provide my email ID in the description, and you can also send a voice message. Uh, I will share that link. And if you are in anchor.fm, you can just थैंक यू। record your voice message and I will post it in my podcast.